Dear all, Varsanupekha Granth is going on and Sarvodaya Tika on the same by Acharya Virag Sagarji Maharaj, in which the second Gatha regarding the 12 Anupreksha was going on. And one by one we are seeing all the Anuprekshas, and repeating again and again is called Anupreksha, that is Bhavana. So the first one, Adruvanuprekshya, we see that what is Adruvanuprekshya, that nothing is everlasting. Second one, Asharan, no one is shelter in the world. Third one is Eyattam, means Ekatva Bhavana, that I am the only soul. And fourth one is Anyatvam, means I am different from all other material things. Now, the fifth anupreksha we had seen yesterday, that was sansar anupreksha, means the word thinking. What is the nature of this word, that we had seen yesterday? And we see that this world is full of sorrows. This world is full of sorrows. We see that a lot of sorrows are there in the world. One sorrow get ends and a lot of sorrows come in front of us, that and we engage ourselves to solve those problems. Then again another more problems comes in front of us. We see that what is the nature of this world. First of all, what is the meaning of the word sansar? So going from one to another is called sancharan, means sansar. So we go from one place to other, that means this soul leave one body and take birth in the another body, and again thereafter the death again go to the another body. So this is called sancharan, means sansar. So this is the sansara anupreksha. And we see regarding our relations, our father can become our son, a mother can become the daughter, a wife can become the daughter, a sister can become the whatsoever relations are that are not everlasting, they get change and change. So the crux was that this is the world that is not everlasting and full of sorrows. That's why, considering this again and again, what happens? We get detached from this world and get involved in our soul. This is the crux of this Sansaranuprekshya. Today, in this sequence, we are going to take the sixth Anupreksha, that is Logam, means Lok Anupreksha. बंधुओं, हमारा चिंतन वार्षानुपेक्षा के ऊपर निरंतर जारी है, जिसमें सर्वोदय टीका के ऊपर परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने एक महान चिंतन हमारे लिए प्रदान किया है और एक ऐसी अनुकंपा हमारे लिए की है कि इस चिंतन के द्वारा हम बार बार अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप चिंतन करके अपने आप को क्या कर सकते हैं, इस संसार महाअटवी से बचाकर और उस सिद्धत्व की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस चिंतन में आचार्य श्री ने एक एक अनुप्रेक्षा का इतना विस्तृत चिंतन दिया है, जिसे हम बार बार चिंतन करके अपने वैराग्य को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। और वास्तविकता में अनुपेक्षाएं क्या हैं? वैराग्य की जननी हैं, वैराग्य के लिए उत्पन्न करने के लिए माता के समान हैं। और इसमें पहली अनुप्रेक्षा हमने देखी अध्रुव अनुप्रेक्षा। अध्रुव अनुप्रेक्षा यानी कोई चीज़ भी स्थिर नहीं है, कोई चीज़ भी स्थायी नहीं है। संसार में जितनी भी चीज़ें क्या हैं, सब अस्थायी हैं। दूसरी अनुप्रेक्षा अशरण, यानी मरण समय में कोई भी शरण नहीं प्रदान करता, कितनी भी कोई हमारे क्लोज रिलेशन वाले हों अथवा कितने भी कोई मंत्र तंत्र वैद्य आदि हों, वे सभी शरणभूत नहीं हैं। काल के द्वारा जो जकड़ा हुआ जीव है वो निश्चित रूप से उसे कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। तीसरी एकत्व अनुप्रेक्षा में हमने
निज आत्मा को, उसके स्वरूप को चिंतन किया और उसमें हमने देखा कि हमारी आत्मा क्या है, एक है। एक अकेली मेरी आत्मा है जो चिदानंद रूप चिन्ह चमत्कारी है। उस आत्मा का ही हमें शरण लेना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। और चौथी अनुप्रेक्षा अन्यत्व अनुप्रेक्षा, यानी जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं वो मेरी आत्मा से अलग हैं। एक एक करके हमने देखा, चाहे पुत्र हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे कलत्र है, यानी कलत्र यानी स्त्री, पुत्र मित्र कलत्र, ये सभी क्या हैं, निज आत्मा से अलग हैं। भाई बंधु सखा संबंधी, धन वैभव मकान पैसा रुपया, ये सब क्या है, निज आत्मा से अलग ही हैं। ये सब जड़ स्वभावी हैं और मैं क्या हूँ, चेतन स्वभावी हूँ। तो ये सर्वथा भिन्न है, ना कभी उससे एक में हुए हैं ना हो सकते हैं। जब तक ये शरीर का संयोग है तब तक ये सारी चीज़ें साथ में दिखाई दे रही हैं। शरीर का संयोग छूटते ही इनसे दूर दूर तक भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है। आज तक हम जहाँ भी भटकते रहे संसार में, उसमें अनेक बार हमें अनेकों पुत्र प्राप्त हुए, अनेकों पत्नियां प्राप्त हुई, अनेकों पिता, सभी अनेक बार प्राप्त हुए, धन वैभव अनेक बार प्राप्त हुआ, लेकिन स्थायी आज तक नहीं रह सका, क्योंकि ये आत्मा से बिल्कुल अलग है, कभी आत्मा के साथ जुड़कर नहीं रह सकता। इस प्रकार से चार अनुप्रेक्षाएं देखने के बाद कल हमने जो चर्चा की थी, किसकी की थी, संसारानुप्रेक्षा, संसार की अनुप्रेक्षा, और जिसमें हमने देखा संसार की स्थिति क्या है, ये संसार कैसा है, संसार का अर्थ क्या है। संस्मरणमिति संसारः, एक गति से दूसरी गति में, भव से भवांतर में संसरण का नाम, संसरण करना, ये क्या है, इसका अर्थ संसार है। तो संसारानुप्रेक्षा में हमने देखा था कि अपने ही पिता मर के अपने ही पुत्र हो सकते हैं, अपने ही बहन मर के पुत्री हो सकती है, पत्नी भी मर के अपनी ही पुत्री हो सकती है, यहाँ तक के स्वयं भी मर के अपने पुत्र हो सकते हैं। ऐसा ये संसार है। एक व्यक्ति स्वयं मरण करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में जन्म ले सकता है, अपने ही वीर्य में उसकी आत्मा प्रवेश ले सकती है और अपनी ही पत्नी के गर्भ में प्रवेश लेकर वो स्वयं भी अपना पुत्र हो सकता है। तो ऐसी विचित्र बात भी कल हमारे पढ़ने में आई थी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि भव्य की अनुपेक्षा ये संसार कैसा है, अनादि शांत है, एक दिन अंत होने वाला है, और अभव्य की अपेक्षा अनादि अनिधन है, ना कभी इसकी शुरुआत है और ना ही कभी उसका अंत हो सकता है। इसलिए ये जो संसार के हेतु हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको त्याग कर क्या करना चाहिए अपन को, संसार के क्षय के हेतु यानी मिथ्यात्व का त्याग, अविरति का त्याग, अप्रमाद और निष्कषायता, इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिससे क्या होता है, ये चिंतन क्यों, ऐसा ही सब चिंतन क्यों होता है, ये संसार का चिंतन हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये बताया था, इससे संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है। इस संसार से क्या होती है, विरक्ति उत्पन्न होती है, और विरक्ति होने के साथ साथ निज आत्मा के प्रति अपना उत्साह और उसके प्रति अप्रमाद की भावना वर्धमान होती है, बढ़ती है। निज आत्मा के प्रति हमारा उत्साह बढ़ता है और उसके प्रति हमारे कार्य भी बढ़ते हैं, उसके प्रति हमारी लगनशीलता भी बढ़ती है। हमारा उस तरफ कार्यशीलता बढ़ने से हम एक दिन उस आत्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगली लोक भावना के विषय में चिंतन कर रहे हैं। तो लोक भावना क्या है, इसके विषय में आचार्य श्री यहाँ पर वार्षानुपेक्षा की टीका, सर्वोदय नाम की टीका में आचार्य विराग सागर जी महाराज लिख रहे हैं, लोगम यानी जो लोगम शब्द आया है ये किसका सूचक है, लोक भावना। छठी भावना कौन सी है, लोक भावना। लोक संस्थान स्वरूपादि चिंतन रूपा षष्ठी लोकानुप्रेक्षा भवति। क्या कहा, लोक के संस्थान का
स्वरूप का चिंतन रूप छठी लोकानुप्रेक्षा भावना है। तो लोक का क्या अर्थ दिया है यहाँ पे? लोक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर बता रहे हैं लोकश्च द्विविधा निश्चय लोकः व्यवहार लोकश्च। लोक भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चय लोक और एक व्यवहार लोक। एक निश्चय लोक और एक व्यवहार लोक। तो स्वकीय शुद्ध परमात्मनि यदवलोकम सा निश्चय लोका। कितनी अच्छी परिभाषा दी। एक परिभाषा आती है लोक की, लुक्यते इति लोका। लुक्यते यानी जहां पर देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। देखा जाता है। अब क्या देखा जाता है? 6 द्रव्यों को जहां देखा जाता है वो लोक है। तो वो परिभाषा तो अभी बाद में कहेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा कि स्वकीय शुद्ध परमात्मनि यद अवलोकनम सा निश्चय लोका। निश्चय लोक की एक नई परिभाषा सामने आई कि निज आत्मा को देखना। निज आत्मा का, स्वकीय शुद्ध परमात्मनि अपनी शुद्ध आत्मा को यद अवलोकनम उसका जो देखना है, सा निश्चय लोका। कितनी नई सुंदर बात कही। निज आत्मा को देखना ये निश्चय लोक है। हम बाहर के लोक को तो देखते हैं, निज आत्मा को नहीं देख पाते। और देखने का अर्थ अनुभव में लाना, क्योंकि आत्मा आंखों से तो दिखाई नहीं देती, पुद्गल तो है नहीं जो दिखेगी। लेकिन निश्चय के द्वारा यानी निज आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी बात को कहा कि यदवलोकनम स्वकीय शुद्ध परमात्मनि सा निश्चय लोका, यानी अपनी आत्मा का जो अनुभव है, अपनी आत्मा को देखना, जो अवलोकन है उसका, जो उसको देखना है या यूं कहें उसका जो अनुभव है वो क्या है? निश्चय लोक है। अवलोकन करना, झांकना, उसकी ओर दृष्टि डालना, उसे निश्चय लोक का है। द्रव्य संग्रह गाथा 35 टीका। तो ऐसा किस में आया है? द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 35 की टीका में अजय ने ऐसा कहा है। व्यवहार लोकस्तु बाह्यो विशिष्ट संस्थान युक्ता अनंता अनंताकाश बहुमध्य देश स्थितो वात्र वेष्टिता असंख्यात प्रदेशा। दूसरा क्या कहा? व्यवहार लोक। तो व्यवहार लोक क्या है? तो लोकस्तु बाह्य विशिष्ट संस्थान युक्ता। तो व्यवहार लोक क्या है? बाह्य विशिष्ट संस्थान युक्त जो अनंतानंत आकाश है उसके बहुमध्य देश स्थितो वात्रत्रय वेष्टिता। तो उसके बीच में ठीक क्या है? 3 वातवल्य से वेष्टित जो असंख्यात प्रदेशी क्या है? लोक है। उसको क्या कहा? व्यवहार लोक। अनंत आकाश के बहुमध्य भाग में स्थित 3 वातवल्यों में से वेष्टित असंख्यात प्रदेशी विशिष्ट संस्थान वाला बाह्य लोक क्या है? व्यवहार लोक है। व्यवहार लोक की बात बताई। तो अस्मिन्नेव लोके शुभाशुभ कर्म भी संस्मरणम शुद्धोपयोगेन च क्रमशः कर्मशः संसार बंधन मुक्तिरपि संभवति। तो अस्मिन् लोके एव, इस लोक में ही, अस्मिन् एव लोके, इसी लोक में शुभाशुभ कर्म भी संस्मरणम। तो शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा क्या होता है? संस्मरण। जो हमने संसार भावना में संसार कहा था, संस्मृति थी संसारा। तो ये संस्मरण कहाँ पे होता है? बोले इसी लोक के अंदर होता है। यही 3 लोक के अंदर क्या होता है? संस्मरण होता है। यानी एक गति से दूसरी गति में जाना, यही 3 लोक के अंदर होता है। 3 लोक के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी जीव पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? यही 3 लोक के अंदर ही पाए जाते हैं। जीव द्रव्य इसके बाहर नहीं पाया जाता। तो वो संस्मरण शुद्धोपयोगेन च क्रमशः कर्म बंधे कर्मशः संसार बंधन मुक्तिरपि संभवति।
तो इसी में जो है शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के द्वारा, शुद्धोपयोग कहो, निश्चय धर्म ध्यान कहो, अथवा स्वानुभूति कहो, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो उसके द्वारा क्रमशः, क्रम से, कर्म क्षये, कर्म के क्षय के द्वारा संसार बंधन मुक्ति रपि संभवती, संसार बंधन से मुक्ति भी संभव हो जाती है। तो जो एक भव से दूसरे भव में संस्मरण हो रहा है वो भी इसी लोक में हो रहा है, और कर्म क्षय के द्वारा मुक्ति भी शुद्धोपयोग के बल पर, शुभ शुभ कर्म के द्वारा जो संस्मरण हो रहा है वो भी हो रहा है, और शुद्धोपयोग के द्वारा क्रमशः कर्म क्षय करके संसार बंधन से मुक्ति भी संभव हो जाती है। मुक्ति बिना न कुछ कुत्रचित दुखाद विमुक्ति, तो मुक्ति के बिना बिल्कुल भी, कदाचित भी दुखाद विमुक्ति न भवती, दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जब तक संसार में है तब तक दुखों से बचना संभव नहीं है। दुखों से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि जितना भी संसार का सुख है ये क्या है? क्षणिक है। और क्षणिक के साथ क्या शब्द आया था? सुखाभास है, सुखाभास है। बालचंद जी को ध्यान रहता है क्या शब्द आया था वहां पर? दो शब्दों के बीच का बात आई थी, एक तो क्षणिक है, नित्य नहीं है, और दूसरी बात सुख ही नहीं है, वो सुखाभास है। सुख जैसा प्रतीत होता रहा है लेकिन सुख नहीं है, वो सुखाभास है, सुख जैसा दिखने वाला। तो एकमात्र यदि सुख है तो वो किसमें है? निज आत्मा में है। इन कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निज आत्मा को जो प्राप्त कर लेता है वो ही सच्चे सुख का आनंद ले पाता है। अयम च लोका अधो मध्य ऊर्ध्व भेदेन त्रिविधा। तो अब लोक का स्वरूप बता रहे हैं कि ये लोक कैसा है। तो पहली बात तो बताई कि ये लोक कैसा है? अधो मध्य ऊर्ध्व भेदेन त्रिविधा। माघ नंदी आचार्य श्री ने जो शास्त्र सार समुच्चय लिखा है उसमें भी एक सूत्र दिया, त्रिविधा लोका, ऐसा सूत्र उसमें है। तीन प्रकार का लोक आता है। तो उसके विषय में भी आचार्य श्री ने यही व्याख्या की थी, आचार्य विराग साहब जी महाराज ने अपने चूर्णी सूत्राणी में, कि अधो मध्य ऊर्ध्व भेदेन, अधो यानी के नीचे का, और मध्य यानी मध्य का, और ऊर्ध्व यानी के ऊपर का। तो इस प्रकार से अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक, इस प्रकार से ये लोक कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि लोक तो एक ही है, लोक तीन नहीं है। तीन लोक का नक्शा, तीन लोक का नक्शा यानी लोक तीन है क्या? तीन नहीं है, लोक तो एक ही है, मात्र उसके तीन विभाग बना दिए गए, तीन विभाग बन गए, जिसमें नीचे का भाग क्या कहा? अधोलोक। जो मध्य का भाग है वो मध्य लोक है, और जो ऊपर का भाग है वो ऊर्ध्व लोक है। तो उनमें क्या है वो भी इसमें आगे आ रहा है। तो समग्र लोकस्य उच्छेदा चतुर्दश रज्जु परिमितः। तो जो समस्त लोक है यानी कि तीनों लोकों का टोटल जो भाग है वो उसका उच्छेद, उच्छेद यानी ऊंचाई, ऊपर से नीचे तक की कितनी है? चतुर्दश रज्जु परिमितः, 14 राजू प्रमाण है। मेरोरधस्तन भागे सप्त रज्जु प्रमाणोत्सेदवान अधोलोक। मेरो यानी के सुमेरु, मेरु के अधः स्तन भागे, उसके अधः स्तन भाग में सप्त रज्जु प्रमाण उत्सेदवान अधोलोका। तो 7 राजू प्रमाण वाला क्या है? अधोलोक। सुमेरु पर्वत के नीचे अधोस्तन भाग में यानी कि उसके नीचे के भाग में 7 राजू प्रमाण क्या है? अधोलोक है। तदुपरि मध्यलोका, इसके ऊपर मध्यलोक है जिसमें सुमेरु पर्वत आदि है। 44 1,00,000 योजनोत्सेदा। तो मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? मध्यलोक की ऊंचाई, तदुपरि मध्यलोका, उसके ऊपर मध्यलोक है। 44 1,00,000 योजनोत्सेदा, 1,40,000 योजन।
ये किसकी है? मध्य लोक की ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि 1 लाख योजन का क्या है? सुमेरु पर्वत, और उसके ऊपर 40 योजन की चूलिका है। तो इस प्रकार से कितनी होगी? 1,40,000 योजन, जिसमें 99,000 योजन ऊपर है और 1,000 योजन नीचे है। तो 1 लाख योजन का तो सुमेरु पर्वत और 40 योजन की उसके ऊपर चूलिका। तो कुल मिला के 1,40,000 योजन का क्या है? ये मध्य लोक की मोटाई कह दी गई। जितना भी यहाँ का वातावरण है, जितना भी आकाश द्रव्य यहाँ पर पाया जा रहा है, ये किस में आएगा? इतनी मोटाई में। वो क्या आएगा? मध्य लोक में। और जो इसके नीचे है, जिसमें नरक आदि है, वो क्या है? अधोलोक। और 1,40,000 योजन के ऊपर, चूलिका से ऊपर का जितना भी लोकाकाश है, वो क्या है? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक। वो सब ऊर्ध्वलोक हो गया। तो यहाँ पर ये बताया कि मध्य लोक की 1,40,000 योजन की क्या हो गई? मोटाई हो गई। अब 1,40,000 योजन में आप देख लो कि क्या कुछ आ जाता है। सुमेरु पर्वत आ जाता है, जितनी भी ये जमीन है, जितने भी पर्वत हैं, द्वीप हैं, समुद्र हैं, ये सब आ जाएंगे। और तो क्या, जो वैमानिक यानी ज्योतिष लोगों के, ज्योतिष देवों के जो विमान हैं, वो भी किस में आ जाते हैं? मध्य लोक में ही आ जाते हैं, क्योंकि वो भी इसी परिक्षेत्र में ही परिभ्रमण करते हैं, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हैं। तो वो भी क्या आ जाते हैं? इसी के अंदर। कोई 790 योजन पे, कोई 791 योजन पे, 92 योजन पे आदि, ऐसे 900 योजन तक, 790, 793, 96, 800 योजन पे, 880 योजन पे, 884 योजन पे, 87 योजन पे, अलग अलग जगह जो है वो क्या है? ज्योतिष देवों के विमान है। कहीं सूर्य का विमान है, कहीं चंद्रमा का विमान है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? मध्य लोक के अंतर्गत आ जाते हैं। ज्योतिष लोगों का निवास कहाँ पे आ गया? मध्य लोक में ही आ गया एक तरह से। तो मूले त्रिलोकस्य अधोभागे पूर्व पश्चिमेन सप्तरज्जु विस्तारा। तो मूल में त्रिलोकस्य अधोभागे, त्रिलोकस्य तीनों लोकों में, तीनों लोगों के अधोभाग में, पूर्व पश्चिमेन, पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर, सप्तरज्जु विस्तारा। तो क्या कहा यहाँ पे? त्रिलोक के नीचे पूर्व से पश्चिम में 7 राजु विस्तार है। त्रिलोक में, त्रिलोक के नीचे पूर्व से पश्चिम में 7 राजु का विस्तार है, यानी चौड़ाई है 7 रज्जु। सा ऊपरी ऊपरी क्रमशः हीयते। तो ऊपर ऊपर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। अधोलोक का नक्शा कैसा है? नीचे 7 राजु है और जो ऊपर ऊपर को क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कितना कम हो जा रहा है? सा मध्य लोके 1 रज्जु प्रमाणो भवति। तो जो नीचे के लोक से शुरू हुआ, घटता घटता मध्य लोक में आके कितना रह गया? 1 राजु। 1 राजु प्रमाणो भवति, 1 राजु रह जाता है। 7 से घटा और घटता 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 मध्य लोक तक आते आते 1 राजु रह गया। पुनः ऊपरी च क्रमशो वर्धते। तो इसके बाद ऊर्ध्व लोक में क्या होता है? वो बढ़ने लगता है। और कितना बढ़ जाता है? 5 राजु तक वो आएगा। इसमें ब्रह्मलोकांते रज्जु पंचक विस्तारा तिष्ठति। तो पुनः ऊपरी च क्रमशो बढ़ते, तो ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ते हुए 1 राजु से ब्रह्मलोकांते, 5वां जो स्वर्ग है, कौन सा? ब्रह्मलोक जिसे बोलते हैं। यहाँ पर कौन निवास करता है? लोकांतिक देव। तो ऐसे 5वें स्वर्ग तक रज्जु पंचक विस्तारा तिष्ठति, 5 राजु विस्तार बैठता है, होता है। ततः ऊर्ध्वम पुनः हीयमान लोकांते रज्जु प्रमाण विस्तारो भवति। तो उसके बाद फिर वापस क्या होता है? वो घटना शुरू हो जाता है और घट के पुनः हीयमान लोकांते, घटते हुए उसको लेते हुए रज्जु प्रमाण, यानी कि 1 राजु प्रमाण विस्तारो भवति, 1 राजु प्रमाण विस्तार हो जाता है। सीधी सी बात है, नीचे 7 राजु और फिर वो घटता घटता कितना आ गया? 1 राजु मध्य लोक में। मध्य लोक से फिर बढ़ा 5वें स्वर्ग तक 5 राजु और फिर घट के ऊपर 1 राजु। तो इस प्रकार से जब हम चौड़ाई देखते हैं तो 1, 5, 1, 7 ऐसी चौड़ाई बताई।
और ऊंचाई 14 राजू। लोकस्य मध्ये चतुर्दश, पुनः हीयमान लोकान्ते रज्जु प्रमाण विसारो भवति। लोकस्य मध्ये चतुर्दश रज्जु प्रमाणोत्सेधा एक रज्जु विष्कम्भा त्रस्नाड़ी भवति यस्याम त्रस जीवा तिष्ठन्ति। तो लोकस्य मध्य, लोक के ठीक बीचों बीच क्या है? 14 राजू ऊंचाई वाली और एक राजू विष्कम्भा, यानी कि एक राजू लंबाई चौड़ाई जिसकी है, ऐसी त्रस नाली भवति। त्रस नाली होती है यस्याम त्रस जीवा तिष्ठन्ति, जिसमें त्रस जीव निवास करते हैं। त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक त्रस जीव कहलाते हैं। तो जितने भी त्रस जीव हैं वो मात्र इसमें त्रस नाली में ही निवास करते हैं। इसके बाहर का जितना भी एरिया है उसमें कोई भी त्रस जीव नहीं रहता। तो इसी कारण उसका क्या नाम है? सार्थक त्रस नाली। नाली क्योंकि वो नाली के आकार की है, एक राजू लंबी चौड़ी और 14 राजू ऊंची, तो एक नाली का आकार हो गया। और त्रस जीव उसमें निवास करते हैं, इसलिए उसको क्या कहा? त्रस नाली। स्थावर स्तूप सर्वत्र, और स्थावर कहाँ पे हैं? सभी जगह। उनके लिए कोई त्रस नाली की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो त्रस नाली के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। सर्वत्र, सभी जगह पाए जाते हैं। मेरोरूपरि भागे स्वधर्म स्वर्गस्य ऋजु विमान तलाद आरभ्य ऊर्ध्वलोका। तो मेरु के ऊपरी भाग में, मेरु से ठीक ऊपर, सुमेरु पर्वत जो है उसके ऊपर ऊपरी भागे स्वधर्म स्वर्ग से ऋजु विमान तलाद। स्वधर्म स्वर्ग, जो पहला स्वर्ग कौन सा है? स्वधर्म स्वर्ग। तो उसके ऋजु विमान, ऋजु नाम का जो उसका विमान है, उसके तल से आरभ्य ऊर्ध्वलोका। तो ऋजु विमान जो है उसका स्वधर्म स्वर्ग का, उसमें उसके तल से आरंभ करके ऊर्ध्वलोका, ऊर्ध्वलोक है। जो स्वधर्म स्वर्ग है उसमें जो विमान है उसका, उसमें ऋजु नाम का जो वो है उसके तल से शुरू करके क्या है? सारा का सारा ऊपर तक ऊर्ध्वलोक है। अधोलोके नरकः, अधोलोक में क्या है? नरक है। मध्य लोके असंख्य द्वीप समुद्राद्या। तो समुद्राद्या का अर्थ है कि अनेक, मध्य लोक में क्या है? असंख्यात द्वीप और समुद्र आदि हैं। तन्मध्य मनुष्य लोका सार्धद्वय द्वीप प्रमाण। उनके बीच में, किनके बीच में? ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में। उनके बीच में क्या है? मध्य लोक है, और जिसमें क्या है? असंख्यात द्वीप समुद्राद्या, असंख्यात द्वीप और समुद्र उसमें पाए जाते हैं। तन्मध्य मनुष्य लोक, उसके ठीक बीचों बीच क्या है? मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक कहो अथवा यूं कहें कि जो 2.5 द्वीप है, तो 2.5 द्वीप क्या है? वो मनुष्य लोक है। मानुषोत्तर के अंदर का एरिया वो क्या है? मनुष्य लोक। सार्धद्वय द्वीप प्रमाण, कितना है ये मनुष्य लोक? सार्ध यानी आधे सहित, द्वय आधे में 2 और जोड़ दो, कितना हो गया? आधे में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 2.5। तो सार्धद्वय द्वीप प्रमाण, आधे सहित 2 यानी 2.5 द्वीप प्रमाण। तो 2.5 द्वीप प्रमाण जो है वो क्या है? मध्य लोक है, यानी मनुष्य क्षेत्र है। मनुष्य मध्य लोके ऊर्ध्व ज्योतिर्लोका तदनंतर मुपरी स्वर्गः विमानवासी देवाश्च। तो मध्य लोक के ठीक ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक है, और नीचे अधोलोक है। तन मध्य सार्धद्वय द्वीप प्रमाण, यानी कि 2.5 द्वीप प्रमाण क्या है? मध्य लोक है। मध्य लोक ऊर्ध्व ज्योतिर्लोक का, मध्य लोक के ऊपर क्या है? ज्योतिर्लोक है, और तदनंतर ऊपरी स्वर्गा, और उसके ऊपर
स्वर्ग के विमान हैं। कौन से विमान वासी देवास्य, तो कौन से स्वर्ग के देव हैं? विमान वासियों के, और औरों के नहीं है, विमान वासियों की बात है यहाँ पर। तथा पर मूर्ध्वम मनुष्य लोकवत पंचचत्वारिंशत् लक्ष योजन विस्तारा सिद्धिशिला। तदनुपरि इनके ऊपर स्वर्ग हैं, इनके ऊपर क्या है? स्वर्ग है। तदनुपरि स्वर्ग का विमान वासी देवाश्च, विमानवादी देव हैं। तथा परमूर्ध्वम मनुष्य लोकवत, उसके बाद परमूर्ध्वम, उसके ऊपर मनुष्य लोकवत, मनुष्य लोक की तरह से पंचचत्वारिंशत् लक्ष योजन विस्तारा सिद्धिशिला। पंचचत्वारिंशत् यानी 45, लक्ष यानी लाख, योजन विस्तारा सिद्धिशिला यानी जैसे मनुष्य क्षेत्र में 45 लाख योजन की बात है, तो वैसे ही 45 लाख योजन क्या है? सिद्धशिला का भी विस्तार है। अब ये 45 लाख योजन कैसे है, कोई बता सकता है? बताओ। 45 लाख योजन, बीच में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, और डबल डबल, तो जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? लवण समुद्र। तो लवण समुद्र का विस्तार कितना हो गया? 2 लाख योजन, 2 लाख योजन हो गया। फिर आगे 1 मिनट, क्या हो गया? 2 लाख दोनों साइड हो गया, बीच में तो 2 लाख उधर, 2 लाख इधर, और 1 लाख बीच में, ऐसा कितना हो गया? 5 लाख योजन का टोटल विस्तार किसका हो गया? लवण समुद्र का। अब इससे आगे धात की खंड का विस्तार उससे दुगना, यानी 4 लाख योजन। 4 लाख उधर और 4 लाख इधर, और बीच में 5 लाख। 4 और 4 8 और 5 13 लाख हो गया। अब 13 लाख के बाद क्या है? कालोदधि समुद्र, उसका विस्तार डबल, यानी 8 लाख योजन। तो 8 और 8 16, और बीच में 13, कितना हो गया? 29 लाख योजन। और इसके बाद पुष्करार्ध। अब पुष्करार्ध, पहली बात तो पुष्करवत द्वीप, तो पुष्कर द्वीप का कितना विस्तार है? 16 लाख योजन। तो 16 लाख योजन तो पुष्करवत द्वीप का प्रमाण है, लेकिन अपन को क्या लेना है? पुष्करार्ध, यानी पुष्कर द्वीप का आधा। तो 16 का आधा 8 लाख, तो 8 लाख इधर 8 लाख इधर, कितना हो गया? 16 लाख, और बीच में 29 लाख, तो 29 और 8 यानी 45 लाख योजन। 29 और 16 कितना हो गया? 45 लाख। तो इस प्रकार से ये 45 लाख योजन का क्या है? ढाई द्वीप है, और उसके ठीक ऊपर 7 राज्यों ऊपर क्या है? 45 लाख योजन की ही सिद्ध शिला है, बिल्कुल उसी विस्तार की, ठीक उसी को ढके हुए। तो यहाँ से जो भी जीव क्या करता है? मुक्ति को प्राप्त करता है, वो 1 2 या अधिक से अधिक 3 समय में क्या कर लेता है? मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया? 45 लाख योजन का विस्तार बताया। वही तो सिद्ध भगवान तो एक ही समय में जाते हैं, लेकिन अन्य जीव जो हैं अधिक से अधिक 3 समय उनको लगते हैं। तो कहीं भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं, तो अधिक से अधिक 3 समय उनको लगते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान की क्या होती है? ऋजु गति होती है। तो ऋजु गति में वो क्या करते हैं? एक समय में सिद्धशिला में पहुंच जाते हैं। तो सिद्धानाम निवासश्च तत्र, वहां पर क्या है? सिद्धशिला पर 45 लाख योजन की सिद्धशिला है, उसमें क्या है? सिद्धानाम निवासश्च तत्र, वहां पे सिद्धों का भी निवास स्थान है। तदुपरि भागे लोकांते अस्ति, तो उसके ऊपर क्या है? लोकांत में, तो वहां पर सिद्ध भगवान का निवास स्थान है। एवं
एवं अत्यंत दीर्घ विस्तार युक्ते लोके न कुतचित सुखम। तो इतने लंबे विस्तार दीर्घ विस्तार वाले लोक में कहीं भी कुचित न सुखम, कहीं भी सुख नहीं है। अब ये लोकानुप्रेक्षा है। ये तो अपन ने कर लिया कि इतना विस्तार इतना विस्तार इतना विस्तार। मेन बात इसमें क्या है कि इतना लंबा चौड़ा जिसका विस्तार है, यहाँ पर इतने बड़े स्थान में भी कहीं पर भी सुख नहीं है। शाश्वत पूर्णानंदस्तु संसार मुक्ते। शाश्वत और पूर्ण आनंद कहाँ पर है? संसार से मुक्ति में ही है। वहीं पर शाश्वत यानी कि स्थायी रहने वाला, और पूर्ण यानी संपूर्ण। तो ऐसा आनंद कहाँ पर है? संसार मुक्त, संसार से मुक्ति होने पर ही है। सच कर्म बंध मुक्ति प्राप्यते। वो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? कर्म बंधन मुक्ति प्राप्यते, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने पर प्राप्त होती है। अतः शाश्वत आनंद स्वकीय शुद्धावस्थायामेव प्राप्तुं शक्य नान्यत्र इत्येव लोक स्वरूपानुचिंतनम लोकानुप्रेक्षा। तो क्या कहा? अतः शाश्वत आनंद स्वकीय शुद्धावस्था में प्राप्तुं शक्यते। तो जो शाश्वत आनंद है, जो स्थायी रहने वाला आनंद है, अपनी ही शुद्धावस्था के प्राप्त होने पर ही शक्यते, प्राप्त होना संभव है, अन्यथा नहीं। अन्य जितना भी आप लोग घूम के आ जाओ, 2.5 द्वीप में घूम के आ जाओ, वो 45 लाख योजन की सिद्धशिला में भी वो आनंद नहीं है जो अपनी आत्मा में आनंद है। वहाँ सिद्धशिला पर जो सिद्धों का आनंद है वो कौन सा आ रहा है? अपनी आत्मा का आ रहा है। सिद्धशिला से उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो तो रहने का स्थान है। लेकिन जो निज आत्मा है, उस आत्मा का कर्मों से मुक्त हो जाने पर क्या हो जाता है? शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और वही शाश्वत आनंद जो है स्थायी रहने वाला है। तो यही जो है इस 45 लाख योजन का जिसका विस्तार है, और जिसके लिए 14 राजू क्या है? ऊंचाई है, ऐसी मनुष्य लोक में 7 राजू ऊपर जाकर सिद्धशिला है, और 7 राजू ऊपर जाकर वहां पर सिद्धों का निवास है। इस प्रकार से जो आनंद है उस आत्मा के प्राप्त करने में ही आनंद है, ना अन्यत्र और कहीं नहीं है। इतएव लोक स्वरूपानुचिंतन लोकानुप्रेक्षा। इसी प्रकार का बार बार चिंतन करना क्या है? लोकानुप्रेक्षा है। एतया तत्व ज्ञान विशुद्धि फलम अवधिक गम्यते। तो इससे क्या होता है? तत्व ज्ञान विशुद्धि रूप फल की प्राप्ति होती है। तो जहाँ एक और कर्मों की निर्जरा का कारण है ये अनुप्रेक्षा, वहीं दूसरी ओर विशुद्धि को बढ़ाने का कारण है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो विशुद्धि चाहिए, और तत्व ज्ञान से जो विशुद्धि प्राप्त होती है, वो इसका लोकानुप्रेक्षा का यानी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने का फल है। लोकानुप्रेक्षा हो या कोई भी अनुप्रेक्षा है, उसका बार बार चिंतन करने से जहाँ एक और विशुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वहीं कर्मों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें क्या चाहिए? बार बार इन अपेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए एक दिन मुक्ति को भी प्राप्त करना चाहिए। इस भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट साविज महामुनि राज की जय।